हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ बेटा क्लास 8th के साइंस सब्जेक्ट चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है अगर आप बुक में देखेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 2 आपका मैच द कॉलम है। ओके, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं जिसमें आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं खरीफ क्रॉप के एंड रबी क्रॉप के। ओके, तो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है पैडी एंड मेज़, रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है वीट एंड ग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है आपके ओन वर्ड्स में इन गिने दिए हुए टॉपिक्स पर। ओके, फर्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आंसर है soil acts as a medium for the germination of seeds and the growth of crops. It provides water and minerals to plants. The plant's growth depends on the soil fertility. The first step in the preparation of soil involves loosening and turning it by the process of tilling or ploughing. Okay, तो ये है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है सोइंग। ओके, सोइंग का मतलब है बीज बोना। सो प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, हेंस सिलेक्शन ऑफ सीड्स गुड क्वालिटी एंड हेल्दी सीड्स बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, थर्ड टॉपिक है आपका वीडिंग। सो वीड्स आर अनवांटेड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स और पेस्ट which grow along with the cultivated plants on their own. The process of removing weeds from a field is called weeding. Okay, next topic है आपका threshing. Threshing, the process of separating grains from the harvested crop is called threshing. Okay, ओके, तो बच्चों इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्चुअली, जिसमें आपको फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच का डिफरेंस पूछा गया है। तो एक एक पॉइंट हम दोनों का पढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट है फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस obtained by decomposition of cattle dung and plant residue. फिर फर्टिलाइज़र आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, इट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrients. Okay, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है और आपको 2 मेथड बताने हैं इरिगेशन के। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, soil to soil and season to season. 2 methods of irrigation that conserve water are, first है sprinkler irrigation. It consists of a main pipe to which many pipes are attached in a series. The perpendicular pipes have nozzles at right angles. Water is flown through the main pipe with the help of a pump. The water enters into the attached pipes and comes out in the form of sprinkles through nozzles. And it sprinkles water on the crops like rain. Second method है drip irrigation. In this system, water falls drop by drop directly near the roots, so it is called drip system. It is the best technique as water is not wasted at all. Next आपका question number 8 है explain how soil gets affected by continuous plantation of crops. So soil supplies mineral nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Hence, this continuous cultivation of crops makes the soil
पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. It includes manual removal as well as using weedicides, etc. एक क्वेश्चन जो है आपका वो मिस हो गया था बेटा, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, if wheat is sown in kharif season, what would happen? Discuss. So if wheat is sown in kharif season, it will not give a good yield because during kharif season it rains heavily, whereas wheat is a rabi crop which does not require a large amount of water. Okay, एंड चिल्ड्रन आपका लास्ट क्वेश्चन है ये फ्लो चार्ट, जिसमें आपको प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू बताना है कि सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया जाता है, फिर हल चलाया जाता है सॉइल में, फिर खाद डाली जाती है, फिर मिट्टी में बीज बोया जाता है, फिर पानी दिया जाता है, और फिर जब फसल पक जाती है तो उसकी हार्वेस्टिंग मतलब कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद उसे फैक्ट्री में भेजा जाता है। ओके, तो ये आपका लास्ट आंसर है और यहाँ पर आपके नोट्स जो हैं वो एंड हो जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।